students, welcome back to my YouTube channel. So let's discuss past test term second. बच्चे term second ਦਾ it means कि नवंबर ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ MCQs ਆਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਟਰਮ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਟਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰਸ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਂਥੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਦੇ ਲਈ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਸੀ। Number 1 question, the phenomena of total internal reflection is seen when angle of incident। ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਬੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਨੋਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟੂਵਰਡਸ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਬੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਂਗਲ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਐਂਗਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਂਗਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਰਿਫਰੈਕਟਡ ਐਂਗਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਗਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦੂੰਗੇ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਆ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਲਲ ਜਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਔਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਕੈਨ ਮੇਕ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਨਕੇਵ 'ਚ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਨਵੈਕਸ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਥ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰੀਅਲ ਐਂਡ ਵਰਚੁਅਲ। ਬੱਚੇ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਆਫ ਅ ਲਾਈਟ ਪਾਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਗਲਾਸ ਟੂ ਏਅਰ ਇਨ ਅ ਮਿਨੀਮਮ ਫॉर। ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਮਿਨੀਮਮ ਆ? ਵਾਇਲਟ ਕਲਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ, ਅ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਹੈਲਡ ਇਨ ਏਅਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨਸਾਈਡ ਵਾਟਰ ਇਟਸ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਬੱਚੇ ਮਿਰਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਲੈਂਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਲੈਂਸ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲਿਕੁਇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਰ ਆ ਉਹਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਅਨਦਰ ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆ F1, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆ ਕਨਵੈਕਸ ਦੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ 40 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਈਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ F ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ 1/F1 + 1/F2। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/40 + 1/40। ਬੱਚੇ ਮੈਂ 40 ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 2/40। ਸੋ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ 1/20। ਸੋ 1/F ਦਾ ਆਨਸਰ 1/20 ਆਇਆ। ਸੋ ਇਕੱਲੇ F ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 20। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 40, ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਆਈ ਹੈ 20। ਸੋ 40 ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਆ ਘੱਟ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਲੈਂਸ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਬੱਚੇ ਫਿਫਥ ਦਾ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਡਿਕਰੀਜ਼, ਬੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੋਰਥ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਟਿਕ ਲਗਾਤਾ ਸੀ। ਫੋਰਥ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਰਿਮੇਨਸ ਸੇਮ ਸੀ, ਫਿਫਥ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸਿਕਸ ਦੇਖੋ, ਸੀਮਾ ਪਲੇਸਡ ਅ ਪੈਨਸਿਲ ਔਨ ਅ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਆਫ ਅ concave mirror in such a way that mirror forms a real inverted image below the principal axis as shown in a figure। ਸੋ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਦੱਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਆ, ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਓਬਜੈਕਟ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲ ਤੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦੀ U ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ A ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆ, B ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। C ਜਾਂ D 'ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ। ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਮਤਲਬ F। ਬੱਚੇ F ਵੀ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਬਜੈਕਟ ਹਾਈਟ, ਆਬਜੈਕਟ ਹਾਈਟ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਅਗਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਤਾਂ ਟੇਕਨ ਐਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਸੋ ਉੱਪਰ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਸੋ C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਨੈਕਸਟ ਆ, ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਨ 3 ਮੀਡੀਅਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੀਡੀਅਮਸ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਆ ABC ਆਫ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ 1.33, 1.65, 1.46। ਦ ਮੀਡੀਆ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਲਾਈਟ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਫਾਸਟਰ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਮਿਊ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ C/V। ਸੋ V = C/μ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ,
ਜਿਹਦਾ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਦ ਮੀਡੀਆ ਇਨ ਵਿਚ ਦ ਲਾਈਟ ਵਿਲ ਟਰੈਵਲ ਫਾਸਟਰ, ਸਾਨੂੰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਿਨੀਮਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਨੀਮਮ ਕਿਹਦੀ ਆ, 1.33 ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1.33 ਕੌਣ ਆ, ਏ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਏ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਪਾਵਰ ਆਫ ਲੈਂਸ is minus 14 diopter and the second lens is power of plus 12 diopter. The total power of the two lenses. So बच्चे power ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ, P1 plus P2. What is P1? P1 is equals to minus 14 plus P2 is plus 12. So this is minus 2 diopter. Minus 2 diopter मतलब B answer. Next ਆ figure बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ given ਆ, figure shows a ray of light as travel from medium A to medium B. Refractive index of a medium B relative to the medium A is. So ਬੱਚੇ ਸਾਨੂੰ options ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ given ਹੈ, ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ sin I ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ sin R। ਸੋ I ਕਿੰਨਾ ਆ 45, ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ sin 45 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ sin नीचे कितना है 60। सो वट इज साइन 45, बच्चे साइन 45 की वैल्यू साइन आई, सॉरी बच्चे मैं लिखने च गलती कर दी, नीचे मीडियम ही आ, नीचे मीडियम ही आ। सो साइन आई मतलब इंसीडेंट एंगल नीचे होएगा। सो बच्चे मेरे वाली गलती ना करना, नीचे वाला आ है तो मतलब आई एंगल आह आ, आर एंगल ऊपर वाला आ। सो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर मतलब 45। साइन 60 की बच्चे वैल्यू कितनी होंगी है, साइन 60 इज इक्वल टू √3 डिवाइडेड बाय 2। नाउ साइन 45 के इक्वल होंदा है 1 डिवाइडेड बाय √2। सो आ गया। हुण ध्यान नाल देखो ऑप्शन दे विच साडा तां कोई भी आंसर मैच नहीं कर सकता कि असीं नीचे वाले 2 नूं लिख सकते हैं √2 इंटू √2। ठीक है, √2 ना कट्टिया गया तो आंसर आ गया √3 ओवर √2। सो ए ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। नैक्सट देखो द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ डबल कन्वैक्स लेंस आर 30 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। सो डबल कन्वैक्स आ बच्चे R1 की वैल्यू सानू 30 गिवन है तो R2 की वैल्यू 60 गिवन है। सानू पता बच्चे डबल कन्वैक्स लेंस आ तो R1 जोड़ा नैगेटिव होंदा तो R2 जोड़ा वो पॉजिटिव होंदा है। नैक्सट उन्होंने क्या आया रिफ्रैक्टिव इंडैक्स मतलब सानू म्यू गिवन आ 1.5। वट इज़ द फोकल लेंथ। सो 1 ओवर F की वैल्यू बच्चे कि इक्वल होंदी है म्यू -1 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर R2। ਹੁਣ ਅਸੀਂ फोकल लेंथ पता करनी है तो 1 ओवर F एस एच लिख दो। रिफ्रैक्टिव इंडैक्स 1.5 माइनस 1 माइनस 1 ओवर 30 माइनस 1 ओवर 60। 1 ओवर 30 बचे तो 30 पुट किया क्योंकि वो माइनस का लेना सी तो 30 का आ गया। 60 बाय रूल इतने माइनस लग्या होया तो इतने 60 जोड़ा आ वो माइनस आ गया। इन्ना हो गया क्लीयर। चलो 1.5 चो बचे 1 माइनस किया गया 0.5 1 ओवर F का आंसर। दूसरी तरफ बचे एलसीएम ले लो 30 तो 60 का एलसीएम लवांगे तो 60। इधर आ गया -2 -1 आ गया 0.5 मल्टीप्लाई -3 डिवाइडेड बाय 60। ठीक है जी, इन्ना सब नू हो गया बच्चे क्लीयर। असी कल्ला F पता करना। सो F असी लिख सकते हैं 60 डिवाइडेड बाय -0.5 मल्टीप्लाई बाय 3। सो कटिंग करके आ गया 20, ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय 5। सो कटिंग करके आ गया 5 4 सो 40 सेंटीमीटर माइनस दे 40 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन देख लो बच्चे माइनस इतने कितने भी नहीं लिखा। सो 40 सेंटीमीटर इज द फाइनल आंसर। नैक्सट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल इमेज प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर कनकेव मिरर कन्वैक्स मिरर। असी इन्हां दे बारे एक कॉमन जी एक लाइन लिखनी आ। सो असी सिंपल लिखांगे द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज मैगनीफाइड that produced by plane mirror is same size and that by convex mirror is a diminished। सिंपल आ कनकेव मिरर दे विच बच्चे तुहाडी जिहड़ी वर्चुअल इमेज आ दिखदी आ ते वड्डी दिखदी आ। जिहड़ा साडा प्लेन मिरर आ साडे घर दे अंदर शीशा आ उत्थे जिद्दां दा तुहाडा साइज़ आ उद्दां दा जिहड़ा तुहानूं सामने शीशे दे विच दिखाई दिंदा। जिहड़ा कन्वैक्स आ जिहड़ा साडी स्कूटी मोटरसाइकल दे विच शीशा लग्गिया हुंदा उह च सानूं पता लगदा कि पिछे जिहड़ी ऑब्जेक्ट आ रही आ उहदा स्मॉल साइज़ आ। सो डिफरेंस की आ कि कन्वैक्स दे विच वड्डा दिखाई दिंदा, कनकेव दे विच वड्डा दिखाई दिंदा, प्लेन दे विच सेम साइज़ दा दिखाई दिंदा ते कन्वैक्स दे विच स्मॉल साइज़ दा दिखाई दिंदा। 12th क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इफ़ अ ग्लास लेंस इज इमर्ज इन अ ऑयल
ऑयल लै लो, वाटर लै लो, लिक्विड लै लो। सो आप किसी लिक्विड दे विच जिहड़ा है अपना लेंस आ उन्हें इमर्ज कर दिता। वट इज़ द इफैक्ट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सो सानू पता बच्चे मिरर ते कोई फर्क नहीं पैंदा फोकल लेंथ ते, बट लेंस ते फर्क पैंदा आ। सो कितना फर्क पेगा? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 ये साडे कोल फॉर्मूला आ। हुण इत्थों सानू पता लग रहा आ कि अगर आ लेंस आ, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडैक्स कितना आ μ1 और हवा का कितना आ μ2। जिद्दां ही असीं इहनूं पानी दे विच डोब दिंदे आ तां बच्चे जिहड़ा सॉरी ऑयल दे विच डोब दिंदे आ तां ऑयल का जिहड़ा रिफ्रैक्टिव इंडैक्स होएगा वो ग्रेटर होएगा हवा नालों। इहदा मतलब जिद्दां ही उहदे विच असीं ऐड करांगे तां की हो जाऊगा तुहाडा म्यू इज़ इक्वल्स टू μ1 ओवर μ2। मान लो μ1 जिहड़ा तुहाडा हवा दा आ ते μ2 जिहड़ा आ मान लो तुहाडा ऑयल का आ। तो डेफिनेटली आ जिहड़ा μ2 अगर ग्रेटर आ, छोटी टर्म नूं वड्डी नाल करांगे तो बच्चे तुहाडी जिहड़ी म्यू की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाएगी। आ वाली म्यू की वैल्यू की हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। हुण सिंपल समझो, आ जिहड़ा असीं लिखिया आ इहदे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर आ टर्म डिक्रीज़ हो रही आ, घट रही आ, तो एफ की हो जाऊगा तुहाडा इनक्रीज़। सो म्यू अगर डिक्रीज़ हो रहा आ, डिक्रीजेस, दैन फोकल लेंथ विल बी इनक्रीजेस। ठीक है जी। सो तुसी अपनी लैंगुएज दे विच बच्चे जिद्दां मर्जी लिख सकते हैं, जिद्दां तुहानूं ईजी लगदा। मैं मैथेमैटिकली एक्सप्लेन कर दिता। अगर तुसी मैथेमैटिकली नहीं लिखना चाहते, डायरैक्ट भी लिख सकते हैं 1/f इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू। इफ म्यू डिक्रीजेस दैन फोकल लेंथ इनक्रीज, इफ म्यू इनक्रीजेस द फोकल लेंथ डिक्रीज। तुसी सिंपल एक लाइन दे विच भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, what is the number of images of an object placed in between two mirrors held at 30 degree with each other। कितना किन्ने number of कहते images जड़ियाँ हैं प्रोड्यूस होणगियां। सो बच्चे ये स्पैशल ही आ, मतलब इदा तो अज तक पंजाब बोर्ड दे विच कदे क्वेश्चन नहीं आया। सो फिलहाल हुण आया आ तो तुसी देख लो ध्यान नाल। बच्चे आ फॉर्मूला आ 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा एंगल। थीटा एंगल जिन्ने ते तुसी मिरर नूं रखिया आ, 1 की आ -1 इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय थीटा कितना आया सी 30 डिग्री -1, 0 नाल 0 कट्टिया गया, ऊपर आ गया 12, 12 चो 1 गए तो 11, मतलब टोटल ऑफ इमेजिस जड़ियाँ आ वो 11 बननगियां। नैक्सट आ वाई द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर रिटन ऑन अ कन्वैक्स मिरर। तुसीं बच्चे आम तौर पर अपनी स्कूटी या मोटरसाइकिल के शीशे के उपर लिखिया पढ़िया होएगा, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर यूज्ड इन अ व्हीकल्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड। कहते ये स्टेटमेंट जी क्यों लिखी जाती आ, क्यों लिखी जाती आ? बिकॉज जोड़े बच्चे वो एक डिमनिश जी समॉल इमेज प्रोड्यूस करती है, जोड़ा साडा कन्वैक्स लेंस होंदा आ। ठीक है, जिहदी वजह नाल उहदी जिहड़ी डिस्टेंस आ सानू मिरर दे विच काफ़ी दूर दिखाई दिंदी आ, बट एक्चुअल दे विच उन्नी दूर हुंदी नहीं आ जिन्नी सानू मिरर दे विच दिखाई दिंदी आ। इस करके वो जिहड़ी लाइन आ उत्थे स्पैशली मैंशन की जाती आ। नैक्सट देखो, एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वैक्स लेंस गैट इट्स इमेज एट द सेम डिस्टेंस। कहते आप एक छोटी जी इनू समझण दे लई एक छोटी जी डायग्राम बना लैंदे आ, अदरवाइज पेपर 'च बनाउण दी जरूरत नहीं आ। वो कह रही आ कन्वैक्स लेंस आ, असी 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ते एक ऑब्जेक्ट रख दिता। जदों इन्हें रियल इमेज बनाई दूसरी तरफ, ठीक है, इदा करके रियल इमेज बनाई दूसरी तरफ, तो वह भी कहते 30 सेंटीमीटर ते बन रही सी। सानू यू भी पता, सानू वी भी पता। वो कहते फोकल लेंथ पता करो। नाउ वट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ? 1/f इक्वल्स टू, हुण याद रखना इत्थे सानू की गिवन है? लेंस। ठीक है, किहदी गल कीती गई आ? लेंसिस दी, कन्वैक्स लेंस दी। सो -1/u + 1/v, जे मिरर हुंदा तां +1/u + 1/v आना सी। सो हुण देखो बच्चे, इत्थे माइनस बाय रूल आ, u की वैल्यू माइनस होंदी आ, v की वैल्यू प्लस दे विच। सो माइनस ना माइनस कैंसल, 30 एलसीएम आ गया, 1 + 1 कितना आ गया 2 डिवाइडेड बाय 30, कट के आ गया 1/15। सो फोकल लेंथ कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर इज़ द फाइनल आंसर। Next, an ink dot on a sheet of a page is viewed from above a distance of 25 सेंटीमीटर। हुण ध्यान नाल देखो बच्चे, इनू भी समझण दी लोड़ आ। इस तरह का कोई स्लैब आ जिथे असी लास्ट दे विच एक इंक रखी हुई आ। इस स्लैब की जिहड़ी थिकनेस आ वो कितनी आ 10 सेंटीमीटर। सो 10 सेंटीमीटर इहदी जिहड़ी आ थिकनेस सानू गिवन है। वो पुछ रहे हैं कि म्यू की वैल्यू जिहड़ी आ 1.5 है। हुण ध्यान नाल पढ़ो, by what distance would the ink dot appears to rise if it is viewed through the distance
glass slab of thickness 12 centimeter held parallel to the पेपर। हुण पेपर दे जिहड़े असीं पैरलल, मान लो जी असीं बिल्कुल उपरों देखते हैं, ठीक है, रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधी आई सीधी चलेगी, दैन मान लो आ पॉइंट की आ ए पॉइंट, आ पॉइंट की आ बी पॉइंट। अगर असीं थोड़ा जिहा एंगल बैंड करके देखते हैं तो की होएगा, सानू इस पॉइंट ते दिखेगा। सो इनू ही पिछे वाले इनक्रीज किया तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ते आके टकराएगा, उस पॉइंट का नाम असीं रख दिता बी, ठीक है जी। हुण ए तो लैके बी तक, ए तो लैके बच्चे बी तक की वैल्यू असी किद्दां पता कर सकते हैं, ए सी टोटल किन्नी आ ए सी, अगर वो चों माइनस कर दईए बी सी। हुण प्रॉब्लम ये है सानू बी सी की वैल्यू भी नहीं पता, ए तो लैके सी तक की वैल्यू तो पता है 10 आ, ठीक है, असी पुट कर दी 10। हुण बी सी कित्थों फाइंड आउट करिए बच्चे, बी सी उन्ना होएगा अगर असी ए सी विचों ओहदा जिहड़ा म्यू आ वो माइनस कर दईए। सो दिस इज़ 10 माइनस 10 डिवाइडेड बाय बच्चे हुण म्यू की वैल्यू किन्नी आ 1.5। सो इनू सॉल्व करके देख लो, जिहड़ा 10 आ उन्होंने कॉमन बाहर निकाल लो, 1/10 नू कॉमन बाहर निकाल लो, अंदर आ गया 1 माइनस 1/5, ठीक है। सो 1.5 चों 1 माइनस किया 0.5 डिवाइडेड बाय 1.5, पॉइंट ना पॉइंट कटिया गया, आ गया थोड़े कोल बच्चे इत्थे 1/10 बाहर निकालते इत्थे आना 10, सो थोड़े को आ गया 10 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 3। सो इनू करांगे तो 3.33 सेंटीमीटर। सो इन्ना जिहड़ा तुहाडा आंसर आ जाएगा। डन। सो बच्चे तुहाडा इंक डॉट वाला जिहड़ा क्वेश्चन सी। नैक्सट आ अ कनकेव मिरर, अगर तुहाडे को एक कनकेव लेंस आ इज़ प्लेसड इन कॉन्टैक्ट विद अ कन्वैक्स लेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। एक कनकेव लेंस आ जिन्होंने असीं कॉन्टैक्ट किया कन्वैक्स लेंस के नाल, जिहदी फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर। द कॉम्बीनेशन वर्क एज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट पावर ऑफ अ कनकेव लेंस। बच्चे हुण तुसीं पावर फाइंड आउट करनी है। सो बच्चे इस तरीके नाल तुसीं इहनूं सॉल्व करोगे। देखदे हां, पहला तां ध्यान नाल स्टेटमेंट पढ़ लो। अ कनकेव लेंस इज़ कैप्ट इन कॉन्टैक्ट विद अ कन्वैक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सब तो पहला सानू की गिवन है F2 कन्वैक्स लेंस की जी फोकल लेंस आ वो गिवन है विच इज़ अ +20 सेंटीमीटर। सो असी F2 लिख दी +20 सेंटीमीटर। सो आ रही बच्चे थोड़ी F2। नैक्सट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। द कॉम्बीनेशन वर्क्स एज अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। टोटल F कितनी है थोड़ी 100 सेंटीमीटर। 1/F इक्वल्स टू 1/F1 + 1/F2। सो 1/F1 असी निकालनी है। सो आ गया 1/F, आ टर्म उधर गई तो -1/F2। सो 1/F कितनी है बच्चे 1/100 माइनस F2 की वैल्यू कितनी सी साडी +20 1/20। सो एलसीएम लवांगे तो बच्चे साडा कितना आ गया 100 ते 20 का एलसीएम 100। सो ऊपर आ गया 1 - 5। सो -4 डिवाइडेड बाय 100, 4 दे टेबल ते बच्चे कट के देख लो 25। सो 1 डिवाइडेड बाय 25। सो सानू 1/F नहीं, सानू कल्ला F चाहिए। सो F आ गया -25 सेंटीमीटर। बच्चे साडी फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। उन्होंने लास्ट दे विच सानू की क्या आया, वट इज़ द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की पावर पता करनी। कनकेव लेंस का बच्चे सानू फोकल लेंथ पता लग गई। सो पावर के इक्वल होंदी है 1/F1 दे। सो F1 साडी कितनी आ 1/25। सो इनू सॉल्व करके देखा तो 0.04 जिहड़ा है तुहाडा फाइनल आंसर आ गया। डन। सो बच्चे ये साडा अज दा पेपर सी जो आपां डिस्कस करके हटे हाँ। बच्चे जिहड़े लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये थियोरी पेपर है जिहड़े 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ। अगर तुहानूं इन्हां क्वेश्चनस दे विच थियोरी क्वेश्चनस दे विच किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होवे या कुछ ना क्लीयर होवे तो तुसीं कमेंट सैक्शन दे विच लिख सकते हैं कि मैम 18, 19 और 20 के उपर भी वीडियो बना दो, दैन मैं वीडियो के लिए अलग तो बना दूँगी। अदरवाइज़ आई थिंक आ बच्चे थियोरी पेपर आ तो तुहानूं सब नूं ये तो आंदे होणगे। अगर नहीं भी आंदे तो प्लीज़ एक बारी कमेंट कर देना कि मैम ये उत्ते भी वीडियो बना दो, तो डेफिनेटली ये उत्ते भी नैक्सट वीडियो बन के आ जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चे प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और सबसक्राइब करना ना भूलियो जिहड़े भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए आ। थैंक यू सो मच।